Hello guys, welcome back to my channel. Good morning to everyone. I wish you all a very good morning. I hope you all are fine there. I'm fine here too. And today we are starting new poem that is from First Life book. The name of the poem is Dust of Snow and the writer here is Robert Frost. Okay. So let's read. The way a crowd shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In the first stanza, the poet says that one day he was on the way, which means that he was outside roaming around in the open. Suddenly, suddenly in the winter season, a crowd shook on him the dust of snow from a hemlock tree. Okay, here we have three important things which have a significant role in society. First, there is a crow, which is a black and often considered the symbol of death, doom, and ill omen. है ना? Also, the crow shook snow on the poet and threw it. Thus, it is obvious that the crow was shivering with chilly cold, again a symbol of doom. Okay. Next, we have the dust of snow. Here we have three words, important three words. They are the second one is dust of snow. Okay. The word dust reminds one of nothingness. In Islamic and Christian theology, we have often read, dust though are and to dust thou will return. है ना? So dusk again become another ill omen and indicates bad luck or doom for something terrible. Finally, we have the word that is hemlock tree, and hemlock tree is a poisonous tree that was once used by Socrates to commit suicide. Okay, thus hemlock tree is also the symbol of bad luck or doom. Okay, this poet here cleverly uses all these images and all these words to show that his day was quite bad and wasted. Okay, he was stuck among impile ill omens, which would have ruined his remaining day as well. But stanza ends leaving the reader in thoughts about the worst, which might occur soon as the poet has encountered so many bad omens at the same time. यहाँ पर जो है पोएट्स ने तीन चीजें जो बुरी चीजें देख ली. सबसे पहले बात तो कौवा जो होता है वो काले रंग का होता है. काला रंग जो है बुरे का प्रतीक होता है. ठीक है. शूक डाउन ऑन मी और द डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री जो है उस पर जो है पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो जो है इट्स टाइप ऑफ अ bad symbol committed suicide. The Socrates committed suicide on this tree, so it is also considered the bad luck here, है ना? One important thing worth noticing here is the whole poem is written in a single sentence. और यहाँ पे एक important चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं वो जो है मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये एक ही सिंगल सेंटेंस में जो हम लोगों ने पूरी स्टोरी जो है पोम जो है वो लिखी गई है. तो दिस स्टेंजा एंड्स इन द फोर्थ लाइन में स्टेंजा खत्म होता है. द सेंटेंस हैज नॉट एंडेड विद indicates the continuity of mood. है ना? यहाँ पे जो राइटर है उसका जो मूड है वो कंटिन्यू हो रहा है उसी तरीके से दुख से. जब उसको पता चलता है कि ये क्राउ है और हेमलॉक ट्री जो कि नेगेटिव चीज़ों का प्रतीक है, वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है और वो सेकंड पैराग्राफ में उसी दुख को जो है बयान कर रहा है. सो लेट्स रीड सेकंड पैराग्राफ. Has given my heart a change of mood and some part of a day I had rued. In this previous stanza we have guessed that something bad will happen, है ना? हम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि कुछ बुरा होने वाला है. But in final stanza, but all three things which are sign of illness and omens जो हमने first stanza में पढ़े have a rather a good effect on the poet. The poet says that the crow, the dust of snow, and the hemlock tree have given a change in the mood in his heart. है ना? Ironically, the poet feels good when the dust of snow, which is quite lightweight, falls on him, and he feels that some part of the day that was wasted was saved. He is feeling good now. जब उसके ऊपर जो स्नो गिरती है तो he is feeling good now. The poet gives us the message that one should never become hopeless and sorrowful. When one face a problem, a person can get relief and inspiration even in the worst situation. ठीक है. तो यहाँ पर जो है जब जो स्नो होती है वो उसके सर पर गिरती है तो
जो दुख है वो दुख एक प्रकार से उसमें खत्म होने लगता है और धीरे धीरे जो एक पॉजिटिव वाइब पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन फर्स्ट स्टैंजा में जब उसने क्राउ को देखा तो एक ये बैडनेस और इलनेस और ओमेन का साइन बताया गया है यहाँ पे। क्राउ हमें शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो भी यहाँ पर एक बुराई का प्रतीक माना गया। और हेमलॉक ट्री जिस पर जो स्कॉर्जन्स हुआ करते थे वो जो है उन्होंने कई बार जो है क्राइम कमिट किया है, इसलिए यहाँ पर जो है हेमलॉक ट्री को भी एक पूरा ओमेन का प्रतीक माना गया था यहाँ पे। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में जो है पोएट का मूड चेंज हो जाता है जैसे ही उनके ऊपर स्नो गिरती है और उनको लगता है कि चलो मेरा आधा दिन तो खराब हो गया लेकिन मेरा आधा तो बचा है ना, मैं उसे सुधारूंगा। और उनके अंदर इसी के थ्रू जो है एक पॉजिटिव वाइब जो वो उनकी बॉडी में आती हैगी और वो मूव फॉरवर्ड होने के लिए जो है थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं और कोशिश करते हैं कि चलो मैंने आधा दिन तो खराब हो गया मेरा, लेकिन क्या मतलब है आधा और खराब करने से, इस बुरी चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचूं और अपने मूड को खुश रखूं, अपने आप को जो है हैप्पीली जो है हर चीज़ में जो है इंडल्ज करूं। एंड इसी तरीके से जो है हमारी पोएम खत्म होती है। ये पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लाइट बुक। आई होप कि तुम लोगों को पोएम अच्छे से समझ आई होगी। ये पोएम जो है बहुत ही आई वुड से एक इमोशन पोयम है जो एक ह्यूमन इमोशंस को डिस्क्राइब करती है। जैसे यहाँ पर जो है किस तरीके से मूड स्विंग्स ह्यूमन के अंदर कितनी जल्दी होते हैं, आप देख सकते हो कि पहले वो क्राउ को देख करके और हेमलॉक ट्री को देख करके बुराई का प्रतीक मान करके ये सोचता है कि चलो अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। लेकिन फिर जब उसके ऊपर स्नो गिरती है तो उसका मूड चेंज होता है कि नहीं चलो आधा दिन तो मेरा खराब हो गया लेकिन मैं अपना आधा दिन और वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उस पर जो है वर्क करूंगा और खुश रहने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो सडन चेंज ऑफ इमोशंस हैं ह्यूमन बींग्स में वो भी एक तरीके से बताए गए हैं। और ये जो है पोम पूरी एक ही सेंटेंस में लिखी गई है ना। आई होप कि तुम लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है तो तुम चेकआउट कर लो यार क्लास 10 फटाफट फटाफट। और मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूंगी, तुम मेरे चैनल से जुड़े रहो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो डालूँ तो तुम लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए जिससे तुम अवेयर हो जाओ कि हाँ अब ये स्टोरी या ये पोम आ चुकी है तो हमें इससे गो थ्रू करना है, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, मतलब पोम जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मैं जल्दी से जल्दी नई वीडियो लेकर के आऊंगी। टेक केयर। Like, comment, and subscribe.